जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव भी बोला जाता है और इसको एडजेक्टिव भी बोला जाता है। इट्स डेफिनेशन इज द वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग्स ऑफ अ नाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, देयर आर टू वेज टू यूज एडजेक्टिव। इसको दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूटिवली। द वर्ड इज फ्रॉम एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? क्वालिटी। यानी व्हेन इट इज यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जब ये नाउन की क्वालिटी के तौर पर यूज किया जाता है। मसलन द नाइस मैन वॉज टॉकिंग, द नाइस मैन वॉज टॉकिंग। तो यहां पर मैन इज द नाउन एंड द वर्ड विच मॉडिफाइज द नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज? किस तरह से यूज किया गया है? इट हैज बीन यूज एट्रीब्यूटिवली, क्योंकि ये मैन की क्वालिटी को शो कर रहा है। The second possibility is adjective can be used predicatively. Predicatively, this is a word from predicate. Predicate means to be the part of a sentence that gives something or some information about the subject. For example, if I just say that Ali is my friend, Ali मेरा दोस्त है, so the subject is Ali. Is my friend is the information that is given about Ali. So is my friend, that is known as predicate. So adjective can be used predicatively. Here is the example, he is very intelligent. अब intelligent जो है that has come after the verb के बाद आ रहा है, लिहाजा that is going to provide some information about he. So it has been used predicatively. Now we are to discuss the types of adjective. Adjective की types क्या हैं? There are certain types, round about to be 10 types of adjectives. Proper adjective, number 1. Number 2, adjective of quality. Number 3, adjective of quantity. Number 4, numeral adjective. और numeral adjective की there are 2 more types: definite numeral adjective, indefinite numeral adjective. Definite numeral adjective की आगे मजीद 2 types हैं, ordinals and cardinals. अभी हम इन types के ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनकी मजीद types देखते हैं. Number 5 is interrogative or interrogative adjective. Number 6, possessive adjective. Number 7, emphatic adjective. Number 8, exclamatory adjective. अब हम इनकी तफसील देखते हैं. Proper adjective. Proper adjective, the adjective which is derived from proper noun, जो कि proper noun से निकाला जाता है, that is known as proper adjective. For example, from Pakistan, Pakistani. From Atchison, Atchisonian, etc. If I just say that he is Atchisonian, then Atchisonian is proper adjective because it is from proper noun. Second is adjective of quality. Adjective of quality, the adjective which shows the quality of a noun or a pronoun, that is known as adjective of quality. For example, if I just say that Ahmed is an intelligent student. Student is the noun. The word which modifies a noun is known as adjective, but it shows the quality of student, so it is known as adjective of quality. He is clever. So clever gives the quality of the pronoun he, so this is adjective of quality.
adjective of quantity. Adjective of quantity, the adjective which gives a concept of quantity. और quantity के लिए we have actually there are two types of nouns, countable as well as uncountable nouns. Uncountable nouns are always taken with some quantity. इनकी quantity ली जाती है. For example, there is a little water in the jug. So water is uncountable noun. A little, it gives the concept of quantity. ये हमें quantity का concept दे रहा है, लिहाजा this is known as adjective of quantity. There is some water in the glass. Some is a word which modifies water, but it gives a concept of quantity. लिहाजा इसको आप कहेंगे adjective of quantity. Adjective of quantity के लिए याद रखिए कि हम little यूज करते हैं, a little यूज करते हैं और the little यूज करते हैं. little का मतलब क्या होता है? बमुश्किल कोई चीज ना होने के बराबर. अगर कोई चीज अनकाउंटेबल हो तो उसके लिए आप लिटल यूज करेंगे. लिटल का मतलब क्या होता है? कमोबेश, कम. द लिटल का मतलब क्या होगा? द लिटल का मतलब कम लेकिन खास, जिसका जिक्र आया हो. यानी वो थोड़ी सी चीज जिसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं, उसको हम द लिटल के साथ यूज करेंगे. अब हम इनके इस्तेमाल देख लेते हैं. देयर इज अ लिटल वाटर इन द ग्लास. ग्लास में थोड़ा सा पानी है. अ लिटल, देयर इज लिटल वाटर इन द ग्लास. ग्लास में बमुश्किल थोड़ा सा पानी है. वेयर इज द लिटल अमाउंट आई गेव यू यस्टरडे. वो थोड़ी सी रकम जो मैंने आपको कल दी थी वो कहाँ है? लिहाजा यहाँ पर देखिए दा लगाने से ये स्पेसिफिक बन गया. यहाँ पर इट मीन्स बमुश्किल थोड़ी सी, a little मीन्स थोड़ी सी, लेकिन इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग. इसी तरह से जब हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो वहां पर हम फ्यू यूज करते हैं. फ्यू यूज करेंगे और द फ्यू यूज करेंगे फॉर काउंटेबल नाउन्स. फॉर काउंटेबल नाउन्स फ्यू चंद, लेकिन बमुश्किल चंद चीजें. अ फ्यू पॉजिटिवली चंद चीजें. द फ्यू मखसूस चंद चीजें. मसलन आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट. मेरी जेब में बमुश्किल चंद सिक्के हैं. फिर मैं लिखता हूं आई हैव अ फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट. मेरी जेब में चंद सिक्के हैं. पॉजिटिवली, वेयर आर द फ्यू बुक्स आई गेव यू. वो चंद किताबें कहाँ हैं जो मैंने आपको दी थी. तो लिहाजा यहाँ पे देखिए द फ्यू चंद मखसूस, अ फ्यू चंद पॉजिटिवली और फ्यू नेगेटिवली. इट मीन्स बमुश्किल चंद. नंबर 4 इज न्यूमरल एडजेक्टिव. न्यूमरल, that is the word which is linked with like word numerical और number. तो लिहाजा ऐसा adjective जो number show करता है. But we can say that there are two types of numbers. There are some students in the class. There are some students in the class. Or then I do say that there are 100 students
in the class. अब यहाँ पर student is the noun. The word which modifies the noun is by definition is known as adjective. वो word जो noun के meaning में इजाफा करता है उसको हम adjective बोलते हैं. So by definition this is adjective. But what type of adjective? Because it gives the concept of number. ये number का concept दे रहा है. So this is known as numeral adjective. इसी तरह से there are 100 students in the class. 100 is going to modify students. Students is a noun. The word which modifies a noun is known as adjective. लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि some जो है it gives a concept of number, but how many students we are not that sure about it. हमें इसके बारे में यकीन नहीं है, लिहाजा इसको हम कहेंगे indefinite numeral adjective. Second sentence में 100 means 100. We are dead sure how many students are there. 100. लिहाजा numerical numeral adjective, there are two types: definite numeral adjective, indefinite numeral adjective. लेकिन याद रहे कि definite numeral adjective की मजीद आगे टू टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? लेट्स सी. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, हम दो सेंटेंसेस ले लेते हैं. आई गॉट द सेकंड पोजीशन. देयर आर 5 books on the table. I got the second position. Position is the noun, and the word which modifies noun is known as adjective. 5 is the word which modifies books. This is also adjective. लेकिन यहाँ पर देखिए second जो है it gives the concept of order. ये order का concept दे रहा है. सेकंड जब हम बोलते हैं तो इससे पहले फर्स्ट आएगा, और सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा. इट गिव्स ऑर्डर, और जो एडजेक्टिव ऑर्डर का कंसेप्ट देता है दैट इज नोन एज ऑर्डिनल. ऑर्डिनल, और जो सिर्फ नंबर का कंसेप्ट देता है दैट इज नोन एज कार्डिनल. तो लिहाजा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की टू टाइप्स हैं, ordinals and cardinals. Number 5 type of adjective is interrogative or interrogative adjective. Interrogative adjective, sometimes we just write in which class do you study. आप किस क्लास में पढ़ते हैं? Class is the collective noun, and the word is going to modify it by definition. This is adjective. ये adjective है. But what type of adjective? Because we have just used which to ask to make a question statement. हमने question statement बनाई है, तो लिहाजा ऐसा adjective जो question पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है is known as interrogative adjective or interrogative adjective. Number 6 is possessive adjective. Possessive. Number 6 is possessive adjective. Possessive is the word from possession. Possession means to show ownership. Ownership यानी मलकियत जाहिर करना. Sometimes we use an adjective to show possession. For example, this is her book. अब यहाँ पर book is the noun, and by definition the word which adds something to the meaning of noun is known as adjective. But what type of adjective it is? ये कौन सी type का adjective है? क्योंकि ये इसकी possession को show कर रहा है. किसकी book? This is her book. This is your purse. ये आपका पर्स है. तो यहाँ पर your जो है it shows possession, but by definition this is adjective, and that is known as possessive adjective. Possessive adjective means adjective which shows the possession
of a noun, that is known as possessive adjective. Number 7 is emphatic adjective. Emphatic, that is a word from emphasis. Emphasis means to put some stress. So the adjective which is used to put some sort of stress. यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, I watch the match with my eyes. मैंने अपनी आंखों से मैच देखा. यहाँ पर my is possessive adjective और it is going to modify eyes. अब मैं आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. मैं इस पर जोर देने के लिए यहाँ पर डबल एडजेक्टिव यूज करता हूँ. आई वॉच द मैच विद माई ओन आईज. अब यहाँ पर बाय डेफिनेशन ओन जो है ये आईज को मॉडिफाई कर रहा है. दिस इज आल्सो एडजेक्टिव. और माई जो है ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट वी हैव यूज डबल एडजेक्टिव. सो ओन इज एक्चुअली एम्फेटिक एडजेक्टिव. Emphatic adjective means the adjective which is used to show some sort of stress, जो stress देने के लिए यूज किया जाता है. Number 8, exclamatory adjective. Exclamatory adjective, आप जानते हैं dear students कि there are 5 types of sentences, जिसमें से एक सेंटेंस है exclamatory sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें हम we just express our feelings, जिसमें हम अपनी feelings का इजहार करते हैं. For example, I do say that what a man, क्या शख्स. और इसके अंदर मैंने अपनी feelings किसकी शो की है? The feelings of surprise, हैरत का इजहार कर रहा हूँ. What जो है ये basically man को modify कर रहा है और by definition this is adjective. लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है. इट इज आल्सो शोइंग आवर फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज. तो लिहाजा वॉट जो है दिस इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मीन्स द एडजेक्टिव विच शोज आवर फीलिंग्स, विच इंडिकेट्स आवर फीलिंग्स, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. अब हम देखेंगे एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज किया जा सकता है, एज प्लूरल नाउन्स यूज किया जा सकता है. एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, समटाइम्स हम क्वालिटी से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं. रिच इज द क्वालिटी. रिच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ही इज रिच. यहाँ पर रिच जो है ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. लेकिन क्वालिटी से पहले अगर हम दा यूज करेंगे तो इट बिकम्स अ नाउन. ये नाउन बन जाता है. इट प्रेजेंट्स द होल क्लास, ये पूरी क्लास को प्रेजेंट करता है. द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल. द पुअर मीन्स ऑल द पुअर पीपल. द स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑल द स्ट्रॉन्ग पर्सन्स. तो लिहाजा एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले द यूज करेंगे. समटाइम्स वी यूज एडजेक्टिव एज प्लूरल नाउन्स. इनको प्लूरल नाउन्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मसलन द जूनियर्स, द सीनियर्स. तो यहाँ पर देखिए जूनियर्स, सीनियर्स, दीज आर प्लूरल और इससे पहले हमने द यूज किया है. It shows all the juniors, all the seniors. Position of adjective. Adjective की क्या पोजीशन है? Adjective कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है? क्या ये नाउन से पहले आता है? क्या ये नाउन के बाद आ सकता है? तो there are certain possibilities to use the position of adjective. Immediately before a noun. हम नाउन से पहले एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर सकते हैं. He is an intelligent boy. Boy is the noun and the word which modifies the noun is known as adjective. And it is coming before boy immediately. So लिहाजा इसको हम adjective का इस्तेमाल कहते हैं जब adjective को noun से पहले इस्तेमाल किया जाता है.
यू आर अ लेजी फेलो, फेलो इज द नाउन और लेजी जो है वो इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इट इज कमिंग बिफोर नाउन। सेकेंड पॉसिबिलिटी एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में बी यूज्ड आफ्टर वर्ब, यानी इसको वर्ब के बाद भी यूज किया जा सकता है। ही वॉज फेथफुल, फेथफुल इज द एडजेक्टिव बिकॉज इट इज गोइंग टू मॉडिफाई ही, ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, इट इज कमिंग आफ्टर वर्ब। यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव एंड इट हैज कम आफ्टर वर्ब। एडजेक्टिव मे बी यूज्ड आफ्टर नाउन, इसको नाउन के बाद में भी यूज किया जा सकता है। चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे, शेक्सपियर डेड, चौसर अलाइव। अब यहां पर बेसिकली डियर, डेड, अलाइव, दीज आर एडजेक्टिव्स, लेकिन इनकी पोजीशंस क्या है, चिल्ड्रन इज द नाउन, शेक्सपियर इज द नाउन, चौसर इज द नाउन, और ये तीनों एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहे हैं। डी पॉसिबिलिटी, व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड दे आर यूज्ड आफ्टर नाउन्स, यानी जब हम मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं तो उनको हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर नाइस एंड इंटेलिजेंट टॉट वेल, अब टीचर इज द नाउन और इसकी क्वालिटीज नाइस और इंटेलिजेंट हैं, दीज आर टू एडजेक्टिव्स। और हमने पढ़ा कि अगर सेवरल एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आएंगे तो उनको हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर टू क्वालिटीज, दीज आर टू एडजेक्टिव्स, तो लिहाजा ये नाउन टीचर के बाद नाइस और इंटेलिजेंट आ रहे हैं। ही वॉज अ टीचर रिच इन रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं कि इन रिसोर्सेज जो है ये फ्रेज है। एडजेक्टिव में कम आफ्टर अ नाउन व्हेन अ फ्रेज कम्स एडजेक्टिवली, अगर नाउन के बाद एक फ्रेज एडजेक्टिवली आ सकता है तो याद रखिए उस सूरत में एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आएगा। ही वॉज अ टीचर रिच इन रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज दैट इज अ फ्रेज विच हैज बीन यूज्ड एडजेक्टिवली, तो लिहाजा एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बाद आया है। एफ पॉसिबिलिटी, एडजेक्टिव, समटाइम्स हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के, कम्स आफ्टर नाउन, जब भी वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो हमेशा ये नाउन के बाद आएगा। बादशाही मॉस्क इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग, वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है, दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, और प्लेस इज द नाउन। द रूल इज, हमने रूल क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव वर्थ आईएनजी फॉर्म जब आएगी तो इट कम्स आफ्टर नाउन। बादशाही मॉस्क इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, तो लिहाजा प्लेस के बाद वर्थ सीइंग आ रहा है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 डिग्रीज। फर्स्ट डिग्री जिसको आमतौर पर द पॉजिटिव डिग्री भी कहा जाता है और द एब्सोल्यूट डिग्री, सेकेंड डिग्री भी इसको कहा जाता है और इसको द कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड डिग्री कहा जाता है द सुपरलेटिव डिग्री इसको बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू मेक द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्रीज बनाने की क्या फार्मूलाज हैं। रूल नंबर 1, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ 1 or 2 syllable adjectives are formed by adding er और est। अगर हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स हों जो सिंगल सिलेबल्स पर मुश्तमिल हों या डबल सिलेबल्स पर मुश्तमिल हों, सिलेबल मीन्स अ कंप्लीट साउंड, अ वर्ड इज, और इट मे बी अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड बोलते हैं इंटेलिजेंट, तो देयर आर 3 साउंड्स, तो इसके कितने सिलेबल्स होंगे, 3 सिलेबल्स, 3 साउंड्स। और हमने रूल क्या पढ़ा है कि अगर सिंगल साउंड सिलेबल होगा, सिंगल सिलेबल होगा या डबल सिलेबल होगा तो उसकी
कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER का इजाफा किया जाता है और सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री बनाने के लिए EST का इजाफा किया जाएगा. एग्जाम्पल इज शॉर्ट. शॉर्ट इट गिव्स सिंगल साउंड. इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER का इजाफा करेंगे. शॉर्टर थर्ड डिग्री बनाने के लिए EST का इजाफा करेंगे. शॉर्टेस्ट. क्लेवर देयर आर टू साउंड्स, देयर आर टू सिलेबल्स और इसकी सेकंड डिग्री बनाने के लिए ER का इजाफा करेंगे. थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम EST का इजाफा करेंगे. और इस प्रोबेबल मिस्टेक क्या हो सकती है कि हम बाज़ औक़ात सिंगल सिलेबल या डबल सिलेबल की सेकंड या थर्ड डिग्री के साथ मोर या मोस्ट वगैरह का इजाफा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर क्लेवरर देन आई. ही इज मोर cleverer than I. This is B. He is more cleverer than I. This is B. This is C. And this is D. So the spot error is more cleverer. Cleverer जो ये already second degree है, clever में से cleverer तो इसके साथ मोर वगैरह का इजाफा नहीं किया जाता. He is cleverer than I. Sometimes more may be used before second degree. That is the possible error we may commit. Rule number 2, the comparative and superlative degrees of adjectives of 3 or more than 3 syllables are formed by adding more and most before comparative and superlative respectively. याद रखिए कि जब हम ऐसे adjectives की बात करते हैं which are having 3 sounds or 3 syllables or more than 3 sounds तो उनकी सेकेंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए हमेशा मोर और मोस्ट का इजाफा किया जाता है. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल देयर आर 3 सिलेबल्स तो इसकी सेकेंड डिग्री के लिए हम मोर लगाएंगे. मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. इंटेलिजेंट देयर आर 3 साउंड्स. मोर इंटेलिजेंट, most intelligent. We may commit probable mistake. ER or EST may be used at place of more and most. हम आम तौर पर ER या EST लगा देते हैं जहां पर हमने more या most लगाना है. He is intelligenter than I. अब intelligent जो है इसके 3 syllables हैं. Intelligent तो इसकी सेकेंड डिग्री के साथ हमेशा मोर और थर्ड के साथ मोस्ट आना चाहिए. यू आर द इंटेलिजेंस ऑफ ऑल तो यहां पर इंटेलिजेंस जो है दिस इज नॉट द प्रॉपर वर्ड तो यहां पर क्या आएगा. यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई. Rule number 3, some adjectives have no formula for the formation of second and third degrees. कुछ adjectives ऐसे हैं जिनकी second और third degree बनाने के लिए यानी comparative और superlative degrees बनाने के लिए there is no formula. For example, good. Good से good, better, best. Better is different, best is different. Bad, worse, worst. Little, late. He is more good in English than his brother. तो आम तौर पर हम जो है वो good की सेकेंड डिग्री लगाने की बजाय more, most का इजाफा कर देते हैं. He is better. सेकेंड डिग्री इसकी he is better in English than his brother. He is better in English than his brother. Rule number 4. The following words are used for second or more than second things or
persons. The following words are used for two or more than two things or persons. यानी याद रखिए कि हम अगर दो चीजें हों, दो persons हों, तो उनके साथ हमेशा each other यूज किया जाएगा, neither यूज किया जाएगा, either यूज किया जाएगा, both यूज किया जाएगा, between यूज किया जाएगा. और अगर more than two हों, more than three, तो उसके लिए one another, none, anyone, all, among यूज किया जाएगा. Both the men divided the money among themselves. अब यहाँ पर both यानी दो लोगों की बात की जा रही है, और जब दो लोगों की बात की जाएगी तो उसके साथ among नहीं आएगा बल्कि between आएगा. Between is for two persons or for two things. Rule number 5. When two or more than two adjectives are used, they are not separated by comma. यानी अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनको कॉमा लगाकर हम अलहदा नहीं कर सकते. Yesterday I saw a long shining car. अब देखिए यहाँ पर long is adjective, shiny is the second adjective, और ये दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन कार को मॉडिफाई कर रहे हैं. लेकिन बिकॉज दीज आर मोर देन वन, तो वी कांट यूज कॉमा हेयर. यहाँ पे हम कॉमा यूज नहीं करेंगे. Yesterday I saw a long shining car without comma. Rule number 6. After the verbs of senses or volunteer verbs like smell, see, touch, we use adjectives and not adverb. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट आर वर्ब्स ऑफ सेंसेस और वॉलंटियर वर्ब्स. इनको वर्ब ऑफ सेंसेस भी कहा जाता है और इनको वॉलंटियर वर्ब्स भी कहा जाता है. अब वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम एक्शन. वर्ब इज अ वर्ड विच शोज सम एक्शन. अब एक्शंस आर ऑफ टू टाइप. अगर हम यहाँ पर एक्शन लगाएं तो एक्शन आर टू टाइप्स. एक्शन डन बाय सेल्फ और एक्शन बियॉन्ड सेल्फ. यानी ऐसे एक्शन जो हम खुद करते हैं एंड वी हैव द कंट्रोल ओवर दोज एक्शंस, और ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. मसलन राइट. अगर मैं चाहूंगा तो आई विल राइट, मैं लिखूंगा. अगर मैं नहीं चाहता तो आई विल नॉट राइट. लेकिन अगर मैं कहता हूं सी, तो सी इज नॉट इन माई कंट्रोल. स्मेल, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. इसी तरह से रिमेंबर, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल. तो हमने यहां पर इसका रूल क्या पढ़ा है कि अगर वर्ब ऑफ सेंसेस आ जाते हैं या वॉलंटियर वर्ब्स आ जाते हैं तो इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज किया जाता है, इनके बाद एडवर्ब नहीं आता, यानी एलवाई फॉर्म नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज दैट बटर टेस्ट स्वीटली. एलवाई यहां पर लग गया है, दिस इज एडवर्ब. लेकिन हमने क्या बताया था कि टेस्ट इज अ वॉलंटियर वर्ब, या इसको आप क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ सेंसेस. लिहाजा इसके बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, बल्कि द राइट सेंटेंस इज शी सेज दैट बटर टेस्ट स्वीट. स्वीट इज एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव की पहचान करने के लिए याद रखिए कि उस वर्ड को उठाकर किसी नाउन के साथ लगा दीजिए. मसन स्वीट, मीट, मीट इज द नाउन और स्वीट इज द एडजेक्टिव. तो याद रखिए, इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं कि वेदर इट इज एडजेक्टिव और नॉट. रूल नंबर 7. सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वेयर एज any is used in negative sentences.
अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो वहां पर एनी आना चाहिए, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो वहां पर सम आएगा. ही डज नॉट हैव सम फ्रेंड्स. अब यहां पर डज नॉट, इट शोज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. ये नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. तो यहां पर एनी आएगा, ना के सम.